चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम राइट अबाउट आवर क्लासेस एंड दैट इज 3ds max actually why ditching human model because we are going to complete that today. So why we are ditching? Yeah, we are going to complete that. We are on a verge to complete that, and you are saying we are going to ditch that. Why? Huh. It took me about why? It took me about 1 month. Hmm? No. Uh, how much time I gave it to that work? 3 hours in a week I am providing it to that work, and I could not able to complete that. All right, let me show you some hyper speed run. Hyper speed run. Let me show you that. I don't care about that. So okay, so let's talk about this. We were creating these ones, right? And yes, so let's select these. Right, that's one. That's two. Let's complete these ears first. And what about weld? Okay, does it works? No. Yeah. Okay. Why? So what you use normally? That is okay. दीजिएगा मेरे को उसमें. हाँ वो तो लेगा ही नीचे. टारगेट में मैं केवल इस चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ. सो आई only use target weld for these things. So now I've just let's go right over here, and this thing could be attached to this. Okay, now as you can see this issue is here, right? So what I'm gonna do, I'll just select, drag, go to one target well, click, 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 click. Now that's hmm? Fill that one, right? And now there is similar thing. So for this one, what I'll do, I'll just select another one, and I'll give it one more right over here, right? And it has the similar issue. So let's select that one, go to target, click it right over here. Another, I think we can work on with this one. Let's take it up a little bit forward, and this one is gonna be target weld with this one, right? And this one is gonna be, yeah, that one. So now I think we had completed this one, and now we need, now what we have to focus on is to that we had to fill all the areas over here, right? It doesn't matter how much polys you are giving it right over here, because it doesn't matter. The most thing matter is that you are going to weld over these border lines, right? So these has to be perfect. So for this one I am not sure, probably I'll do what, I'll just target well this with this, and I'll just put it right over here, right? So it's kind of like that, and I need to create a separate lobe for it, right? So we're gonna do the lobe thing later on. Now what are we going to do? As you can see, this is not connected, so we had to connect that. This is pretty much connected, but this one is not, so I'll just select that, select, and give it a connection right over there. Again, let's go it right. Let's go and give it a target weld. What happened? All right, it says, yeah. So now as you can see, this one has to go with this one, right? Then only it could be fixed.
as you can see, it will always give me an issue if I select. Right, now it is fixed. So it kind of like that, and I'll have to target weld this one with this one. Okay, so now we had the fixed area, and we have one issue over here which we are seeing, that there's a triangle, right? So we could fix that triangle. No, we don't want to give a cap. Actually, we are going to merge it or either provide something, but before that we had to see that how much uh, values we will get over here. So we'll just have to select, right? So I think if I just target weld this one with this one, right, then select this one and give it a right, and select that one with this one, again give it a drag it up, and you can actually join these with this, and this one is you can join with this one, right? So now you can see there are whole new two triangles right over there, but there is one more thing which is not yet connected, and that is this thing. So what I'm going to do, I'm just gonna select edge, and I'm gonna cut that. So no, I'll be needing this edge. I'll cut right through this one. So I could not able to cut anything right over here. Okay, let's see, does ring works? No, it doesn't works. Okay, so let's give it a connect. किस चीज़ में? कनेक्ट जोड़ता है, कट काटता है। कनेक्ट जो है आपस में लाइन जो कनेक्ट करता है ना, वो वर्टाइसेस दे देता है, और जो डिफरेंस यही है कि कट जो है वो प्रोसीजरल नहीं है, मैनुअल है। अच्छा, इसके कारण ये इशू हो रहा था। सेपरेट वर्टेक्स था, इसको अगर मैं रिमूव कर दूं, सो इट डजेंट मैटर, वो आराम से हो जाता। अब सिचुएशन ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होगा। सो लेट्स सेलेक्ट दैट, गो टू रिंग, कनेक्ट कर दो, और अब लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब ये अंदर पे है ट्राइंगल, तो डजेंट मैटर, इट इज़ नॉट गोना बी शोड अप ओवर हियर, नाइदर इट इज़ गोना बी एनिमेटिंग। तो वो अगर डिलीट भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये तो हो गया। अब बात आ जाती है यहाँ पे कि हमें यहाँ से यहाँ तक का एक डिवीज़न बनाना होगा। कट नहीं हुआ ना? नहीं, हमारे पास पहले तो कर लिए थे हमने।
से नॉर्मल से नहीं पकड़ रहा था ना, इसलिए मैंने फिर उसको कनेक्ट किया। एंड देन यू कैन सी कि ठीक है, ये ट्रायंगल रहे तो इट डजेंट मैटर, है ना। बट और ये जो हिस्सा है ये हमने अभी फिक्स किया हुआ है, सो यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोना बी सेलेक्टिंग, इधर से बीच से एक कनेक्ट दे देंगे। वहाँ बराबर से होना चाहिए। अब देखो, अब ये हो गया, है ना। सो नाउ यू कैन सेलेक्ट दैट बॉर्डर और कैप कर दो। हो गया आपका ईयर का ऊपर का हिस्सा तैयार। देखना हो तो ओपन सब डिव लगा लो। सो यू कैन सी दैट योर ईयर हैज़ ऑल दोज ग्रूव्स इनसाइड ऑफ इट, है ना। थोड़ा बहुत और एनाटॉमी में आप वो करके इसको अंदर जाएगा ना, ये यहाँ से इधर अंदर चला जाता है। बट अभी फ़िलहाल हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज वी आर ऑन अ स्पीड रन। सो हम बाद में ज़रूर उसको एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो ये जो है ना, ये एक्चुअली इवन नहीं रहता, ये यहाँ चला जाता है। दो छल्ले नज़र नहीं आएंगे आपको गोल गोल घूमते हुए, ग्रूव्स में ना ऐसा हो जाता है। एक हिस्सा यहाँ चला जाएगा। यहाँ जो हुआ है ना वो कट जो है, अब गलती से कट लगा होगा या एक्सट्रूड हो गया होगा, जो भी होगा। हाँ, है ना। अभी देखोगे तो ये अब ऐसा आ जाएगा, है ना। तो कुछ इसी तरीके के रहेंगे वो। यहाँ पे छेद होता है, यहाँ से अंदर जाती है सुनने वाली जो नली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे छेद होता है, बट ये हमको दिखाना नहीं है, तो यहाँ टेक्सचर मैप डाल सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सेलेक्ट दिस वन, क्लिक करो, ड्रैग करो आगे, ठीक है, ऐसा, राइट। सेगमेंट दे दिया हमने। यही एरिया जो है वो कनेक्ट होगा ईयर्स के साथ, है ना। तो अब क्या होगा, सिंपली इसको हम सेलेक्ट करेंगे ऐसा, और हेड बनाया, हेड है सर, लाए तो थे ना, ये तो है, यहाँ फाइल तो दिखा रहा है, ये देखो ना, हेड तो है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ फिक्स करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, मिरर करना है, कॉपी, सॉरी कॉपी नहीं, नो क्लोन करना है मिरर को, और वाई ये है ना, ठीक है। और इसको क्या करना है, रिवर्स नॉर्मल करना है। तो इधर, क्योंकि ये ब्लैक कलर है बाहर और अंदर पे ये है। अभी अगर मेरे को यहाँ पे मैं वाइट, यहाँ पे मेरा फेस जो नॉर्मल है ना वो फेसिंग है, कैमरा फेसिंग है, और ये कैमरा के अपोजिट है। तो अगर मैं या तो मैं ये करूँ कि इसको फ्लिप कर दूँ, और या इसको फ्लिप कर दूँ, दोनों एक ही बात है। क्योंकि मुझे इसको फ्लिप करूँगा ना, तो इसके साथ कनेक्ट करते वक्त मुझे क्या बोलते हैं, बाद में फिर मेरे को इसको एक बार फ्लिप करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो दोनों बात एक ही है। बट मैं चाह रहा था कि अगर मैं इसको फ्लिप करता हूँ ना, तो ज्योमेट्री जो है वो, ज्योमेट्री से कुछ नहीं होगा वैसे। अब फ्लिप जो है वो कहाँ मिलेगा, हम्म, कहाँ मिलेगा रिवर्स फ्लिप? रिवर्स फ्लिप नहीं होता, फ्लिप रहता है। देखो, एडिटेबल पॉलीगॉन्स, सारे पॉलीगॉन्स सेलेक्ट करो, फ्लिप ऑप्शन है ना। फ्लिप करो तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे वो फ्लिप हो गए, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो। अब मुझे बॉडी के आई थिंक शेप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बना तो लिए हैं सारा। ओवरऑल कभी अगर लगे तो रखे रहने दो उसको। मैं इन प्लेन्स को हाइड कर देता हूँ अभी, जितने भी प्लेन्स हैं मैं उन सबको हाइड कर रहा हूँ, ताकि हम पहले वर्क कर पाएँ, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो राइट ओवर इन द लेफ्ट व्यू, और इसको सामने रखेंगे, बीच में इफेक्ट पिवट, सेंटर ऑब्जेक्ट कर देंगे, इफेक्ट पिवट ऑफ, और
अब कान जो है वो आँख से कितना बड़ा होता है, तो इसका ये जो हिस्सा है वो ब्राउज के हिस्से जितना होता है, और ये जो है ईयर लोब्स का हिस्सा जो होता है वो नोज की टिप के जितना होगा, है ना। तो थोड़ा छोटा करो इसको, ठीक है। अब ये ईयर का साइज हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बोलते हैं, काफ़ी, नहीं नहीं नहीं, हमने मैशेस बराबर लिए हैं, बस हमें इसको कंट्रोल करना है। अब ये जो हुआ है इसको अंदर करो। हाँ, नहीं नहीं, फ्लिप हुआ वाला पार्ट नहीं है, वो तो अंदर का पार्ट है ना। हम्म, अंदर के ड्रम्स जो रहेंगे वो बाहर आने लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको ये वाले हिस्से को पकड़ो, अंदर लो, ये वाले हिस्से को लो, थोड़ा बाहर लो। नहीं, किसकी, ईयर्स की हाइट? हाँ, वो हो जाएगा। ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा कौन सी जगह का है ये पता चले। नॉर्मल्स को ना पकड़ना दिक्कत होता है, क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं होते। वर्टेक्स सेलेक्ट करके हम सर्कुलर सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए हम एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि ये सर्कुलर में हो जाए पूरे के पूरे, है ना। अब देखो ना, ये जो हिस्से निकले ना, इनको अब मुझे वर्टेक्स सेलेक्ट करके ही अंदर करना होगा। ठीक है, नाउ गिनना पड़ेगा कि कितने वर्टेक्सेस हैं इधर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, लगभग 12 होंगे। और यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बराबर हैं दोनों जगह। सो इजीली जुड़ जाएगा वो, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो विल जस्ट पुट इट राइट ओवर हियर और अटैच। सबसे ज़्यादा इधर ही लगेगा। 1 2 3 4 5 6। ये वाला ना, हमें देखना होगा।
यहाँ पे भी एक और वर्टेक्सेस है। ओके, ये तो फिर ये कहाँ जुड़ेगा? ठीक है, सो लेट्स टारगेट वर्ल्ड दिस वन। चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट वेल्ड कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा, है ना। अब इधर पे कुछ लग रहा है तो व्हाट विल डू, विल सेलेक्ट रिंग कनेक्ट, है ना। राइट, अब ये जो है ना, फ्रंट पे जाओ, स्नैप की दबा हुआ था। अभी भी थोड़ा एबनॉर्मल दिख रहा है। हम्म, अभी भी थोड़ा एबनॉर्मल दिख रहा हाँ, थोड़ा बहुत लगता ही रहता है वो आपको बैठ के वो पूरा उसका लूप सेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ना हड्डी ऊपर उठी रहती है कान के पीछे, ये वाले सेक्शन पे। तो इधर पे ना आपको स्कल्प्ट करना है, मतलब इसी को मैश को फ्लो में लाना है। तो जैसे आप उसको फिक्स करोगे ना, तो वो वैसे ही आएगा इसको। अब ये ऐसा रख दिया हमने, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बाहर ले जाएंगे, थोड़ा एडजस्ट करोगे आप उसको। है ना, और सब इधर के ऐसे हो जाएंगे। ओके, सो काइंड ऑफ लाइक दैट। अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ा सा और उसको फिक्स कर सकते हैं, लाइक है। शायद ये इस पार्ट को हमको अंतर करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे वाला पार्ट अलग से दिखता है। ये जो दबा हुआ है ना, हाँ, तो फ्रंट ये वाला ऐसा क्यों हो गया? अगर हम्म, अच्छा, ये एक्चुअल में ना ये वाला पार्ट जो है ना, ये चिपकता है इसके साथ। हमने उसको क्या किया, अभी पूरा ऐसे ही बना दिया है। अलग कर दिया। हाँ, तो वो वैसे चिपकता है उसके साथ, मतलब ये आपका ये वाला सेक्शन ना उसी के साथ जुड़ जाएगा, मेश के साथ। ये वाला जो सेक्शन है, हमने क्या यहाँ पे ये ऐसे ही निकाल दिए, तो अब अगर उसको फिक्स करने जाएंगे तो हमें ये पूरा डिलीट करना पड़ेगा। सो फॉर नाउ लेट्स कैच अप विद दिस वन, और फिर देखते हैं कि अगर लगा तो फिर हम उसमें वो चीज़ कर देंगे बाद में, है ना। फ़िलहाल हम इसको क्या करेंगे, इसको एक मिरर दे देते हैं, क्लोन कर देते हैं इसका। सिमेट्री कर सकते थे उसमें, बट वो मैसेज अपने आप ही मर्ज हो जाते जाते हैं, नहीं वो तो जुड़ जाते हैं। अपन देख रहे थे कि ये कैसे बन रहा है। ये ना थोड़ा सा मैश जो है ना स्ट्रेच होना चाहिए।
वही देख रहा हूँ, प्रॉबेबली हल्का सा मैश जो है ना वो हो रहा होगा। नोट्स थोड़े अफ्रीकन जैसे लग रहे हैं, ब्रॉड। अफ्रीकन के होते हैं। ब्रॉड वाले ना, हाँ, अफ्रीकन्स के भी होते हैं, काइंड ऑफ एशियन जो होते हैं ना, उनका भी ब्रिज बहुत बड़ा होता है, उनका टिप बड़ा नहीं होता, इसके कारण से नोज़ बाहर पकौड़े जैसे नहीं आती। तो वेल्ड सीम हो गया। एक्चुअल में सबको एक साथ हमने फिक्स कर दिया। अब एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं अपनी उसके अकॉर्डिंग, मर्जी के अकॉर्डिंग। Okay, let's go and put it right over here. Let's go and put this one right over here. Okay, अब ये पूरा हेड तो हो गया। नोज़ वगैरह जो है इसमें आपको वो बनानी पड़ेगी, होल देने पड़ेंगे। तो होल देना बहुत ही आसान है, सिंपली आपको कैप पकड़ना है ना। तो यू जस्ट हैव टू गिव अ, जो भी है ना। नोज़ को अभी फिक्स नहीं करेंगे, हम पूरी ज्योमेट्री को भी फिक्स कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे। फिक्स दिस विथ योर हेड। आई थिंक हाथ वगैरह हमने पहले ही कर दिए थे ना। लेट्स फिक्स दिस वन विथ आवर हेड और center to the object। कितना बड़ा होना चाहिए हेड बताओ? हुँ? कैसे पता लगाओगे कितना होगा? पाम के हैंड के हिसाब से नापो। कितना बड़ा? उतना तो फेस होता है केवल हेयर लाइन से। हाँ, लेकिन यहाँ पे हेड जो है वो कितना, यहाँ प्रपोर्शन कैसे पता करेंगे? प्रपोर्शन पता करेंगे इधर से। इट कुड बी लाइक दिस। विड्थ जो है वो थाई के जितनी होनी चाहिए वो बराबर है, थोड़ा सा कम। नाउ दिस इज ओके। आपका जो फ्रंटल फेस है, नहीं कान आन पूछना है ना, सब आ जाता था इसलिए बोलते हैं ना, गर्दन के यहाँ से अपने उसको पैंट की को नाप के देखो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या तो था कि थाइज में आप नापते हैं तो समझ आ जाता कि आपका पैंट आपकी वेस्ट में आ सकता है कि नहीं। ये ट्रिक रहती है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर रहा हूँ एंड लेट्स ऐड दिस एंड अटैच दिस टू ज्योमेट्री।
तो आज ही हम लोग इसका टेक्सचर वेक्चर करके वो भी बना लेंगे जो भी है। लेट्स अनरैप भी कर देंगे। सो लेट्स गो विथ टारगेट वर्ल्ड और सेंटर के साथ देखते जाते हैं किसका कितना है। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर वैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो 20 की वर्टाइसेस नहीं है। हम्म? है ना? मेजरमेंट प्रिटी एक्यूरेट रहा। होगी। और बस हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट वर्क करनी रहती है ना। सो विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट दैट। नींद आने लगती है जब ऐसे वर्टाइसेस फिक्स करो ना। फिर वाज लाइक, और जनरली मैं जब काम करता हूँ ना तो या तो मैं साउंड या कुछ ऐसा चला लेता हूँ, क्योंकि आपको वर्टाइसेस वन बाय वन ही फिक्स करने हैं। यहाँ पे एक इशू हुआ है विच इज़ जो ये सिचुएशन बड़ी अजीब सी नज़र आ रही है ट्रैप मसल्स है। ना। ट्रैप मसल्स आ जाएंगी, है ना। तो हम ये दे देंगे। पहले ओवर थोड़ा एग्जैजरेट करना पड़ता है ताकि आपको वैल्यू मिल सके, और फिर उसके बाद आप उसको क्रिएट करते हो जो आप बनाना चाहते हो। मैं इसको थोड़ा सा हम आगे करते हैं और फिर इसको सेलेक्ट करके दोनों को बराबर बराबर से। सर अगर हम कोई बॉडी बिल्डर कैरेक्टर बनाते तो उसकी ज्योमेट्री भी सेम टू सेम यही होती। मतलब मैश फ्लो ऐसा ही होना चाहिए, बाकी क्या बोलते, साइज़ बढ़ जाएगा ट्रैप्स वगैरह का। वो हम जी ब्रश में नहीं दे सकते? पहले ये बेसिक मॉडल बन गया, फिर जी दे ब्रश में सकते उसको हो, मसल्स दे दो। दे सकते हो। जनरली लोग क्या करते हैं? कोई इतनी मेहनत तो नहीं करेगा। तो सब बेस मैश बनाते हो और जी ब्रश पे ले जाके उसको डिटेल कर देते हैं, यही चीज़ की जाती है ना। तो वो जल्दी काम हो जाता है इसलिए, है ना।
ओके सो सर स्मूथ हाँ स्मूथ स्मूथ है ना, ओपन सब डिव मारते हैं, पहले देखते हैं कि कैसा जा रहा है। ओपन सबडिव और टर्बो स्मूथ में अंतर ये रहता है, ओपन सब डिव में क्या है वो मैश फ्लो बढ़ाता नहीं है, तो वो पढ़ वैसा ही रहा है, बस आपको दिखा नहीं रहा है वो यहाँ पे मैश फ्लो। जैसे माया में मैस्लो बढ़ता नहीं है पर फ्लो होता है। हाँ लेकिन काउंट वो वैसे ही होता है उसमें भी, है ना। यहाँ क्या हुआ, कुछ हुआ ना अगर स्ट्रेच हुआ, एनीवेज। तो ओवरऑल हमने एक ज्योमेट्री अच्छा था। हाँ, अब क्या करेंगे, हमारा ये सब तो बन गया है, अब लेट्स वर्क ऑन दी रिगिंग, और क्योंकि प्रपोर्शन अब इसके बाद ना आप एन नंबर ऑफ चेंजेस करते रहो, आप उसके पैर पतले कर लो, क्योंकि पैर जो है वो थोड़े से बड़े नज़र आ रहे हैं, है ना, तो आप वो चेंजेस कर सकते हो। लाइक सबसे पहले की जो नीज जो है ना वो वॉबली नीज है, तो नीज को थोड़ा सा स्ट्रेट कीजिए, है ना, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, इसका साइज़ थोड़ा सा कम, एक्चुअली में इस पूरे का साइज़ थोड़ा सा कम आएगा, बड़े ही मॉन्स्ट्रस जैसे पैर। हाँ ठीक है, सम सॉर्ट यहाँ पे थोड़ा सा इशू हुआ है, बेबी फीट। हाँ नहीं नहीं ये हॉर्स टाइप से पीछे हो गया, एक्चुअल में स्केल किए थे ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, अब ठीक रहेगा। सो दिस इज़ द बेसिक मैश, जो कि हमने काफ़ी जल्दी बनाया है इसलिए थोड़ा सा ये है, बट हमारा जो रेफरेंस है वो है आपके पास अभी, लैपटॉप में उसका एक इमेज रेफरेंस यहाँ मिल तो जाएगा ना यस आउटलास्ट का, तो हम घर पे देख लेते हैं। आर्ट हम्म आर्ट स्टेशन। आर्ट स्टेशन गूगल में भी होगा, है ना। ओके सो दिस वाज आवर कैरेक्टर, तो डेफिनेटली उसके थोड़ी सी ज्योमेट्री जो है वो लिम्पिड है, वेट थोड़ा कम है ना, तो उसकी हेड के मुकाबले उसकी बॉडी वेट जो है यहाँ पे हमने, क्योंकि हमारा रेफरेंस थोड़ा सा मस्कुलर रेफरेंस था, है ना, इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हुआ। तो अब क्या करना होगा ऐसी सिचुएशन में, आपको इन सब चीज़ों को सेलेक्ट कर करके कम करना होगा, वो भी एक बड़ा हेक्टिक पॉइंट है, तो ऐसे इसलिए फिर आप जी ब्रश में ले जाओ और वहाँ पे इसको कर सकते हो। फिलहाल हम उसका एक बेस तैयार कर लेते हैं, विच इज़ अब जैसे अब आँख वगैरह है, जेस्चर तो सिंपल रिग से हो जाएगा, तो हमारा ये जो स्टफ़ है ना, ये स्टफ्स हमको वहाँ देने हैं। सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले एज यू कैन सी ये आँख के लिए एक ये बना हुआ है और कुछ कुछ बने हुए हैं, तो आप इसको बॉक्स लो, ठीक है, और इसमें से सब डिवीज़न बढ़ा देते हैं, ये वाले नहीं, ये वाले अच्छे सब डिवीज़न बढ़ाओ। अब बैंड मॉडिफायर्स होते हैं, कुछ ऐसे मॉडिफायर जो ज्योमेट्री को डिफॉर्म करते हैं, जिनको डिफॉर्मर बोलते हैं, ठीक है। तो डिफॉर्मर लगाएंगे, बैंड एक डिफॉर्मर है, क्योंकि हमें आँख जो है उस पर फिक्स करना है। बेंड क्या करता है, किसी भी ज्योमेट्री को बेंड कर देता है ना, तो ये इसको फिक्स करेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एंगल डायरेक्शन, ओके, एक्स डायरेक्शन। अपर लोअर लिमिट,
एक्स डायरेक्शन एंगल देखिए है ना, इट इज देयर। सो नाउ यू कैन सी कि वो फिक्स हो गया। देन इसको एडिटेबल पॉली पे कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब वो इफेक्ट भी ख़त्म हो गया और ये भी आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा वैल्यूज़ को हम और पीछे ले जाएंगे क्योंकि यहाँ तक है ना ये। ठीक है, और ये नोज़ के ऊपर तक है, ध्यान रखें नोज़ के ऊपर तक रखना है इसको। ठीक है, अब इसके बाद इसमें दो छेद हैं आइस के, तो दो छेद बना लो बुलियन करके। इसको अटैच कर लो ज्योमेट्री को। बस अब अटैच क्यों होगा? क्योंकि ये एक साथ गायब करेंगे ना इसके ऊपर से। जस्ट हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बस एक क्लास में था, आप बाकी बताओ। हाँ अच्छा, तो हाँ हाँ, तो अभी कोई वर्क अपडेट नहीं आया है, वो भी कर रहे हो कि ये तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि कोर्स जो है, नहीं इलस्ट्रेटर नहीं, लेकिन इलस्ट्रेटर की लिंक्स मैं भेज रहा हूँ, वीडियोस लिंक्स, उसके वर्क देखना, जो भी वर्क मैं इसमें करा रहा हूँ वो वर्क करके मेरे को देना है ना। यू डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल द ट्यूटोरियल, बस आकर जाके देख लेना कि आउटपुट क्या निकल रहा है ना, वैसे वर्क में कुछ है हाँ। हो जाएगा, अभी तो इनडिज़ाइन नहीं हो रहा है, इलस्ट्रेटर कंप्लीट होने के बाद होगा है ना। तो ओके, कितने बजे तक? ओके ठीक है ना, मैं बात करता हूँ। ओके, टेक केयर, वेलकम, बाय बाय। सो अब मैंने क्या दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया है। सो अब मैं इसको अगर रिमूव करना है इसमें से तो प्रो बुलियन कर दूंगा। सो आई जस्ट गो ओवर हियर, कंपाउंड, प्रो बुलियन, स्टार्ट पिकिंग, जस्ट क्लिक। वो बार बार करो ना तो एक बार में ज्योमेट्री फिर गड़बड़ाती है। आप एक बार में सबको एक साथ रख के फिर उसके बाद करोगे ना तो एक बार में क्लियर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वी वर क्वाइट एक्यूरेट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो ये सेक्शन है राइट, दो इस तरीके की चीज़ें फिक्स हो रही हैं, ऊपर से एक क्लिप है और एक स्ट्रैंगल्ड वो गया है, रोप गई हुई है, स्ट्रिंग जैसा कुछ गया हुआ है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्लिप को बना लेंगे। क्लिप को बनाने के लिए साइड में जाएंगे, लाइन का उपयोग करेंगे क्योंकि लाइन जो है वो सबसे सही से क्लिप बना देगी हमारे लिए। ठीक है, और यहाँ पे कॉर्नर में स्मूथ ना करके इसको कॉर्नर कर देंगे दोनों तरफ। तो जब भी मैं कुछ ड्रॉ करूँगा, लाइक इट कुड बी समवॉट लाइक दिस।
है ना. So I'll just select that and put something like that. तो अब हमारे पास क्या आ गया, एक शेप आ गया. अब इसको हमको क्या चाहिए है कि हमको सबसे पहले इस शेप को रेंडर व्यू पोर्ट रेक्टेंगुलर, और लेंथ जो है वो, विड्थ जो है वो बिल्कुल छोटा है ना. कितनी रखनी है विड्थ, और जो हमारा ग्राफिक है उसमें देखना होगा ये चौड़ा है, और पीछे का क्लिप जो है प्रोबेबली हाफ होगा या ये होगा, है ना. तो आई डोंट नो कि हाफ कितना है कितना नहीं. सो हम क्या करेंगे, ये वाले को डिलीट कर देंगे. इट शुड समथिंग लाइक दैट, है ना. और अब हमें चाहिए है कि इनकी विड्थ जो है वो ज़्यादा रहे और इसकी विड्थ कम रहे. तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का ये देखना पड़ता है ना, लेंथ जो है वो कितनी है. तो छोटा सा क्लिप है, इट कुड बी समथिंग लाइक दैट, और ये यहाँ फिक्स रहेगा, ऐसे ही रहेगा ना. और बीच में शायद फिर पट्टी भी होगी, है ना, या तो उसी के ऊपर बना हुआ है या जो भी. सो अगर इसके ऊपर बना हुआ है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट द convert this one into an editable poly again, go to 4, select these, एक इंसर्ट कर दो, यहाँ से इंसर्ट की वैल्यू जो है ना वो इंसर्ट वैल्यू एंड देन, ठीक है. इट लुक्स समथिंग लाइक दैट. तो इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लो. और आपका ये जो ज्योमेट्री है ये कहाँ गई, इसका पिवट कहाँ है. कौन से व्यू में आ गए जहाँ पे रोटेट नहीं हो रहा. कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है pivot में. लोकल, इससे क्या होता है. लोकल से क्या होता है कि वो जो आपका गिज्मो है ना वो आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है. नहीं तो नॉर्मली वो पूरे वर्ल्ड में 3D स्पेसेस होती है ना उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है. तो जब आप प्लेसमेंट करते हो तो वर्ल्ड में करो, और नहीं तो लोकल में करो. क्या चीज़, लंच के लिए. अच्छा अच्छा, आ रहा मैं. फिर कब तक कंप्लीट हो जाएगा. अगर हम आज करें तो, अगर इफ़ आई गॉट टाइम बोलूँगा तो मुझे लगता है ये कंप्लीट हो जाएगा बाय हाफ एन आवर मोस्ट. मतलब हाफ एन आवर तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम, इसलिए क्योंकि ये जो ज्योमेट्री यहाँ पे लगाई गई है ना सर के पास, ये ज्योमेट्री जो है ये थोड़ी सी ट्रिकी है. मतलब अब इसमें ये स्ट्रिंग्स बनाऊँ, है ना, फिर ये जोड़ूँ फिर ये सब जोड़ूँ. ये हालांकि एक मैकेनिज्म बना के कॉपी करना है वो, है ना, तो वो तो हो जाना चाहिए. बट आई हैड टू सी दैट. सो आई थिंक इट विल टेक मी वन मोर क्लास और समथिंग, है ना, जिसमें हो जाएगा. टेक्स्ट
टेक्सचरिंग इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि इसमें यहाँ टेक्सचरिंग कुछ उतनी खास नहीं है डिजिटल पेंट्स में। ग्रे स्केल जैसे दिखेगा। हाँ, तो वो तो मेरे को बहुत आसानी से हो जाएंगे। मैं प्रोबेबली क्या करूँगा, मे बी हमारा जो जी ब्रश है उसमें मैं आज इसको ले जाता हूँ और उसकी ज्योमेट्री और उसकी बॉडी पे हम वर्क करें। वैसे प्रीवियसली मैंने जी ब्रश जो है वो उसमें डॉगी फेस वगैरह हेड वगैरह बनाने को बोला था, है ना, तो वो एक आप देख सकते हो। मैं उधर इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ इन ज्योमेट्रीज को अभी जी ब्रश में, क्योंकि आप लोग को मैं चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से सीखो, रेदर देन आप पहले ही बेस मैश बना के वहाँ ले जाके कर सकते हो तो जल्दी आउटपुट आएगा, लेकिन फिर आपका मैश बिगड़ेगा, है ना। सो दिस हैपेंस जनरली। तो आप वहाँ पे पहले उसके तरीके से बनाने सीखो और यहाँ पे अलग बनाना सीखो। ज़ेब्रा के लिए मॉडल अलग बनाना पड़ता है। होता है